जय हिंद फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुंदर सर की पाठशाला। यस फ्रेंड्स, बी रेडी, एनर्जी के साथ, पावर के साथ तैयार हो जाइए। आज हम नई चीज, नया इतिहास रचने जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है, यू नो वेल अबाउट व्हेनेवर वी डू सम वर्क इन ऑब्लिगेशन फोर्सफुली, आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको ये लिखना पड़ेगा, आपको वहां जाना पड़ेगा, मुझे ये काम करना पड़ेगा, उसे ये काम करना पड़ेगा, उसे ये लिखना पड़ेगा, उसे पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा, उसे प्राइम मिनिस्टर से मिलना पड़ेगा, उसे ये रुकना पड़ेगा, उसे खाना पड़ेगा, उसे चाय बनाना पड़ेगा, उसको ये करना पड़ेगा, उसको वो करना पड़ेगा। Whenever we do some work in obligation and forcefully, that time we use will have to. What will we use? What will we use? Will have to. Will have to का हमें प्रयोग करना है। My dear friends, before this class, I already taught you has to, have to, and had to. Has to, have to we use in present, had to we use in past, and will have to we use in future. So let's start today's class without delay. My dear friends, will have to, this sentence, these words will be used in obligation in the future. जब फ्यूचर में कोई दबाव हो, फ्यूचर के अंदर कोई फोर्सफुली कोई काम कराएं, उस समय हमें विल हैव टू का प्रयोग करना पड़ता है। इसके अंदर ना तो कोई प्रीपोजिशन होता है, ना ही कोई कंजक्शन होता, ना ही इंटरजेक्शन, ना ही इसमें कुछ भी नहीं होता है, ना ही कोई टेंसेस होते हैं। ये अपने आप में ही इस सेंटेंस की अलग आइडेंटिटी होती है। जैसे मुझे गांव जाना पड़ेगा कल, क्योंकि मुझे कुछ हेल्प चाहिए। हाउ विल यू मेक दिस सेंटेंस? यू विल मेक दिस सेंटेंस, I will have to go to village tomorrow because I need some help. मुझे खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे भूख लग रही है। I will have to cook food because I am feeling hungry. मुझे गुरुदेव के पास जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे कुछ सीखना है। I will have to go to गुरुदेव because I have to learn something. मुझे कुछ सीखना है। Such kind of, मुझे ये दोबारा काम करना पड़ेगा आपकी वजह से। I will have to do this work again because of you. You never understand what I did, but you already taught the pages and papers. Because of this reason, I need to do again this work. So whenever such kind of sentences we make in the English, in the Hindi, that time we utilize every and each moment. So my dear friends, without any delay, let's start today's class. Our first example is, okay, before example you just read out, इसका उपयोग भविष्य में किसी कार्य को करने की अनिवार्यता को दर्शाने के लिए किया जाता है। अनिवार्यता in the sense, this is the obligation, this is the दबाव, this is the force. This is the obligation, this is the दबाव, this is the force. We just do this work. Okay. Today our topic, in this topic we'll cover many points, many beautiful sentences. So please tight your shoulder, tight your neck, and focus on goal and concentration at the board. So if everything's okay, now let's start. Okay, example number 1. Example number 1 is, I will have to work late tomorrow. I will have to work late tomorrow. My dear friends, I will have to, you are looking here, will have to means obligation in the future, दबाव में करना पड़ेगा, भविष्य में ये काम दबाव में करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? work late tomorrow, मुझे कल लेट तक काम करना पड़ेगा। मुझे I will have to work late tomorrow, मुझे कल देर तक काम करना पड़ेगा। What is the meaning of it? मुझे कल देर तक काम करना पड़ेगा, उसे कल देर तक काम करना पड़ेगा। My dear friends, whenever we just send the subject, that time we have to use just I replace into he or I replace into he. Replace को I को किस में replace करेंगे? he में, तो he हो जाएगा he will have to work late tomorrow, उसको कल देर तक काम करना पड़ेगा। she will have to work tomorrow, उसे girls, female, if we are talking any female, that time we will use here she. So she will have to work late tomorrow,
उसे कल देर तक काम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू वर्क लेट टुमारो, कल उसे देर तक काम, कल तुम्हें देर तक काम करना पड़ेगा। दे विल हैव टू वर्क लेट टुमारो, उन्हें कल देर तक काम करना पड़ेगा। I hope you understand. If you understand, please like, share, subscribe the channel and comment me so that I get the energy and power and I give to best content by God blessings. Okay. Next example, they will have to submit the report by Friday. They will have to. They, my dear friends, are you looking again? Will have to. Are you finding here? Will have to. If we have to, will here, will have to here. Then you just use this sentence. Obligation in the future. हमें दबाव में कोई काम करना पड़ेगा, फोर्सफुली दबाव में, और हम इच्छा से करेंगे तो वो दूसरा होता है। इच्छा वाला मैं इसके बाद वाली क्लासों में दूंगा। हम दबाव में करते हैं वो अलग होता है, हम इच्छा से करते हैं उसके लिए अलग होता है। अगर हमारी इच्छा होती है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, उसके लिए हम कुछ अलग लगाएंगे, लेकिन दबाव में करते हैं उसके लिए ये सेंटेंसेस हम यूज में ले रहे हैं। कौन कौन से? हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू। If we are talking about the present tense, in present tense will use has to, have to. If we are talking about the past tense, my dear friends, without any hesitation and problem, you have to use only had to for past sentence, and for future sentence you can use will have to. You can use will have to. So they will have to submit the report by Friday. उन्हें शुक्रवार तक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। तुम्हें कल तक पेपर सबमिट करना पड़ेगा। तुम्हें क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? तुम्हें इन द सेंस यू विल हैव टू सबमिट द पेपर बाय टुमारो। तुम्हें कल तक पेपर सबमिट करने पड़ेंगे। अंडरस्टैंड? तुम्हें 4 बजे तक पेपर सबमिट करने पड़ेंगे। आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। Whenever you are the student, you go to class and teacher sometimes tell कि I don't want to listen. कल तक तुम्हें कॉपी चेक करानी पड़ेगी, बोलते हैं टीचर्स। That time they what will use the sentence? They will use you. My dear student, you will have to submit your copy by tomorrow first period. कल पहले पीरियड तक आपको कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी। I don't want to listen. If you absent, I will punish you. डरा देते हैं टीचर्स कि अगर छुट्टी रहोगे तो फिर पिटाई हो जाएगी, दंड मिलेगा आपको, है ना। तो आपको दंड नहीं खाना, आपको पिटाई नहीं खानी, आपको अपना वर्क, योर वर्क यू हैव टू डू बिफोर डेडलाइन। समय सीमा से पहले आपको ये काम करना चाहिए। ओके, सो कल तक आपको यहाँ आना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम हियर बाय टुमारो। यू विल हैव टू कम हियर बाय टुमारो। नेक्स्ट इज I will have to submit my card to the head office. मुझे मेरा कार्ड सबमिट करना पड़ेगा हेड ऑफिस बिकॉज ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, उन्हें अपना काम, उन्हें कल तक अपनी कॉपी दिखानी पड़ेगी। They will have to show their copy to the math teacher. उन्हें अपनी कॉपी मैथ्स टीचर को दिखानी पड़ेगी। कब तक? 3 बजे तक बाय 3 o'clock, 4 बजे तक बाय 4 o'clock, शुक्रवार तक बाय फ्राइडे, फर्स्ट पीरियड तक बाय फर्स्ट पीरियड, लंच तक बाय लंच, स्कूल ओवर हो, स्कूल की छुट्टी हो तब तक बाय स्कूल ओवर। हाउ विल यू से? तुम्हें तुम्हारी मैथ्स वाली कॉपी मैथ्स टीचर को दिखानी पड़ेगी लंच तक। माय डियर फ्रेंड्स, विदाउट हेजिटेशन जस्ट मेक द सेंटेंस। यू विल हैव टू शो योर मैथ्स कॉपी टू द मैथ्स टीचर बाय लंच टुडे। गेटिंग? यस, आज लंच तक आपको आपकी मैथ्स कॉपी दिखानी पड़ेगी मैथ्स वाले सर को। I hope you understand well. Next, we will have to study hard for the example. हमें एग्जाम के लिए परीक्षा के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। We will have to hard study. We will have to study hard for the exam. We will have to, हमें करनी पड़ेगी study अध्ययन, hard कठिन मेहनत for the exam. हमें एग्जाम के लिए कठिन मेहनत करनी
पड़ेगी। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम्हें परीक्षा के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू स्टडी हार्ड, यू विल हैव टू स्टडी हार्ड फॉर द एग्जाम, यू विल स्टडी हार्ड फॉर द योर यूटी फर्स्ट, यू विल हैव टू स्टडी hard for your maths paper, you will study hard for your economics paper, you will have to study hard for your science paper, you will study hard for your maths paper, your English paper, your science paper, your SST paper, you will have to study hard your whatever जो पेपर है उसके लिए। ओके, और मुझे करनी पड़ेगी I will have to study hard if I want to speak English, if I want to speak English I will have to speak in English। अगर मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, if I want to speak in English, if I want to speak English I will have to start speak in English। अगर मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, अगर मैं if I want to speak English, अगर मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं तो मुझे इंग्लिश बोलना पड़ेगा। होता है दोस्तों, आप चाहते हो यार मैं भी इंग्लिश बोलना चाहता हूं, अब मेरे भी कई दोस्त हैं यार मैं भी इंग्लिश बोलना चाहता हूं, तुझे कैसी आई, तूने कैसी सीखी? भाई मैं भी ऐसे सीखा हूं जैसे स्टार्ट मुझे भी स्टार्ट करनी पड़ी, एक दिन करनी पड़ी, तो मैं उनको बोलता हूं आपको भी एक दिन स्टार्ट करना पड़ेगा, आज से स्टार्ट कर दो, यू जस्ट स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट। और कल से करोगे यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, आप कल से स्टार्ट करोगे तो आप इंग्लिश सीख जाओगे। माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू not start, if you not begins, if you not speak in English, how will you learn? Impossible। अपन का moral ethics जो है, अपन को ब्रेन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, अपन को ब्रेन को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अपने वर्ड्स जो आते हैं ना, कभी कभी अपन बोलते हैं मैं खाना खाता हूं, अपन खाने की जगह ब्रेन को इंडिकेशन देना पड़ेगा कि आई विल हैव टू ईट फूड, आई विल हैव टू ईट फूड, मुझे खाना खाना पड़ेगा, या आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं, या आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा, या आई हैव टू ईट फूड, मुझे खाना खाना पड़ता है। अब ये सेंटेंस आप दिमाग में जब लेते हो, सोचते हो, तो दिमाग में वजन तो आता है, और आप कंफर्ट जोन से बाहर जब निकलते हैं तो परेशानी तो आएगी। भाई एक बार तो ये होता है कि मुझे पेन दे दो, सीधी सी बात है, मुझे पेन दे दो, आप तुरंत बोल दिया, आपको यार सब कुछ आता है क्योंकि बचपन से सुनते आए हो, मुझे पेन दे दो, मुझे कॉपी दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये दे दो, वो दे दो, यहाँ रख दो, वहां दे दो, ऐसे बोलते हैं। जब आप इसको इंग्लिश में बोले हुए, इंग्लिश में व्हेनेवर यू स्टार्ट इन स्पीक इन इंग्लिश, तो कुछ तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो आपको बार बार प्रॉब्लम आएगी, गिव मी द पेन, गिव मी द मार्कर, गिव मी द कॉपी, गिव मी द, ऐसे करोगे तो करने दो, होने दो, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन वो जो 2 मिनट का हो रहा ना, वो धीरे धीरे 1.5 मिनट का होगा, एक दिन वो 1 मिनट का होगा, एक दिन वो आधा मिनट का होगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। हाय मम्मा, कैन यू गिव मी द पेन प्लीज? हाय डैडी, कैन यू गिव मी द कॉपी प्लीज? डैडी गेट मी अ न्यू कॉपी प्लीज टुडे, डैडी नई कॉपी दिला दो ना प्लीज, डैडी गेट मी अ न्यू बाइसाइकिल टुडे प्लीज, प्लीज डैडी, प्लीज, यू आर माई गुड डैडी, यू आर माई सुपर डैडी। बच्चे तो अपने डैडी से प्यार करते हैं, वो जो भी अपने हिसाब से बोल सकते हैं, तो वो दे विल स्पीक इंग्लिश। फिर कॉन्फिडेंस से लिखेगा, फिर आपको आप ही को लोग बोलेंगे कि यार आपने इंग्लिश कहां से सीखी, आपको इंग्लिश कैसे आए, फिर देन यू कैन गाइड देम कि मैंने भाई स्टार्ट किए। तो माय डियर फ्रेंड्स, सभी बातों की एक बात है, 100 बात की एक बात, कुछ भी नहीं है। आपको कुछ आता नहीं आता उसकी परवाह मत कीजिए। आप सपोज करो आपको कुछ भी नहीं आता, एग्जाम्पल के लिए आपको ये पता है कि मुझे कुछ चीज लेना है और लेने को बोलते हैं मुझे दे दो, लेना है यानी दे दो, आपको पता है लेने को गिव बोलते हैं, तो आप बोल दो गिव मी कुर्सी। अगर चेयर की स्पेलिंग नहीं आ रही है, गिव मी कुर्सी, गिव मी मार्कर, गिव मी दरी, कारपेट नहीं आ रहा साहब आपको, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप गिव बोलने की तो आदत डेवलप करो, जो आता उसकी तो दे दो। आपको नाइफ चाहिए, सब्जी काट रहे हो, तो आप क्या कहेंगे, गिव मी चाकू, गिव मी आलू, कोई बात नहीं, जैसे आए वैसे बोलो। अरे बेटा, माय डियर सन एंड डॉटर, आप स्टार्ट करोगे, स्टार्ट तो करना पड़ेगा, स्टार्ट कर दोगे ना उसी दिन से आप समझ जाना कि आपका काम हो जाएगा। क्योंकि बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े बंगलों वाले लोगों के, महलों वाले लोगों के, पॉलिटिक्स के बच्चों को, उद्योगपतियों के बच्चे को
तो उनको एनवायरनमेंट ऐसा मिलता है बड़ा बड़ा, वो अच्छी अच्छी स्कूलों में जाते हैं, वहां लाख लाख 2-2 लाख रुपए महीने का या साल का उनका वो क्या होता है, फीस होती है। आप लोग या मेरे जैसे जो लोग हैं, हम सरकारी स्कूल से, देसी स्कूल से पढ़े हुए हैं, और देसी स्कूल से पढ़े हुए हैं जहां पे पूरी स्कूल में ही 2 कमरे हुआ करते थे, और दरी तो क्या पेड़ के नीचे बैठा करते थे। मैं मानता हूं आजकल स्कूलों की हालत ऐसी तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी कई बच्चे ऐसे हैं जो सुविधाएं उनको प्रॉपर नहीं मिलती है, लैक ऑफ फैसिलिटीज अभी भी उनके पास होती है। और आप इस चीज का ध्यान मत दीजिए, आपके अगर 2 हाथ, 2 पांव, आंख, नाक, कान और सोचने समझने की, बोलने की शक्ति सही है, बेटा आप इस दुनिया में नाम कमा सकते हैं। आपको कोई भी नहीं रोक सकता, रोकना तो दूर, आपके कोई टच भी नहीं कर सकता। अगर आपने ठान लिया तो सब कुछ कर सकते हो। इंग्लिश तो बहुत छोटी चीज है, आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, आपको नोबेल पुरस्कार मिल सकता है, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, आपको भारत रत्न पुरस्कार मिल सकता है। यू कैन अवार्डेड बाय द भारत रत्न, आप भारत रत्न पुरस्कार से भी आप सम्मानित हो सकते हैं। These are the honor. You just decide in your mind, you just discipline, you just dedication. There are 3D: discipline, determination and decided. There are 3D: डिसिप्लिन, अनुशासन। कोई भी कैसा भी इंसान रहे, सभी के साथ रेस्पेक्ट से बात करना है, चाहे से जानवर हो। आप ये मत बोलिए जानवर होगा, आप रेस्पेक्ट से बात कीजिए। डॉगी हो, बिल्ली हो, देयर आर बिल्ली, इट इज ए बिल्ली, इट इज ए कैट, प्लीज मूव, कैट गो फ्रॉम हियर प्लीज। आप उनको रेस्पेक्ट से बात कीजिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बॉडी स्ट्रक्चर, ओनली खोले का फर्क है। माय डियर फ्रेंड्स, उनको भी भूख लगती है, उनको भी पोटी आती है, उनको भी टॉयलेट आता है। दे आर ऑल्सो अर्निंग ऑन देयर लेवल, वो भी अपने लेवल पे अपने अर्न करते हैं, खाते हैं, कमाते हैं। आप लोग भी ऐसे ही हैं, अपन लोग भी ऐसे हैं, मैं भी ऐसा ही हूं। ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शन, डिसिप्लिन, मेंटेन द डिसिप्लिन। नेक्स्ट इज डेडिकेशन, समर्पण कर दीजिए, आग लगा दीजिए, एक एक सेकंड को यूटिलाइज कीजिए। आप स्टेशन पर बैठे और ट्रेन 10 मिनट लेट आएगी, आप अपने आंखें बंद कीजिए, अपने ब्रेन की शक्ति को चालू कीजिए और उसके अंदर डालिए क्या डालना है, अपना रिवाइज कीजिए। मुझे कुछ करना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे सबका लाडला बनना है, मेरे सब नियर और डियर है, मैं इस दुनिया में सभी मुझे प्यार करते हैं। अपनी अवचेतन शक्ति में प्यार दीजिए, आग लगाइए, बुरे विचारों को उठा के फेंक दीजिए। समर्पण शक्ति में इतनी ताकत है, आप जो कर रहे हैं अपने को करता हुआ देखिए। आप अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, अपने आप को फीलिंग कीजिए। मोर देन 1 लाख स्टूडेंट आर सिटिंग इन फ्रंट में, आई एम गिविंग देम लेक्चर, मैं उन्हें लेक्चर दे रहा हूं, मैं उनको पढ़ा रहा हूं। आई एम बिकम इंस्ट्रक्टर, मैं उनका दिशा निर्देशक हूं। अपने आप को डालिए, अपने आप को डालिए, फिर देखिए चमत्कार। आपको ऑडी मर्सिडीज जगुआर कुछ भी कार चाहिए, आपको जिस बंगले में रहना है उसका सपना देखिए, मेरा बिल्डिंग 3 मंजिल का हो गया, मेरा बिल्डिंग वो वाला भी 3 मंजिल का होगा, मैं होगा, भगवान मुझे शक्ति देगा, मेरा वो वाला बिल्डिंग भी होगा, मेरे पास इतने बच्चे होंगे, मेरे पास वो होंगे, मैं सभी का फेवरेट बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं तन मन धन से पढ़ाऊंगा, मैं एक एक मिनट को यूटिलाइज करूंगा, मैं मेरे बच्चों के साथ टाइम पास, चीटिंग, धोखा, डिसीव कुछ भी नहीं करूंगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। और जो बच्चा एक बार मेरे पास आ गया वो जिंदगी में मुझे छोड़ के नहीं जाएगा जब तक उसकी पूरी कंप्लीट ग्रेजुएशन लाइफ सेटल नहीं हो। ऐसा कुछ डिसाइड कीजिए। और मैं इतनी स्टडी करूंगा, मैं लेटरिंग करूंगा, फ्रेश होऊंगा तो भी मेरे माइंड में पढ़ाई चलती रहती है। पागलपन, डेडिकेशन, समर्पण, ये इसकी शक्ति है। दूसरा डी हो गया डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन इन द सेंस दृढ़ निश्चय। आंधी आए, तूफान आए, नींद आए, आलस आए, मीठी मीठी नींद आए, ज्यादा भूख लगे, कुछ नहीं, माइंड की शक्ति को
ब्रेन की शक्ति को, दिल की शक्ति को, इन शक्तियों से ऊपर उठकर अपने अवचेतन माइंड की शक्ति को पहचानिए, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को पहचानिए, फिर देखिए चमत्कार। और जहां चमत्कार होता है वहां नमस्कार होता है माय डियर फ्रेंड्स, वहां नमस्कार होता है। गेटिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड। आज का इतना सा मोटिवेशन हो सकता है कोई मेरा जो भाई और बहन या मेरा बेटा और बेटी है उसके लिए लाइफ चेंजिंग सेमिनार हो सकता है, उसका जीवन बदलने वाला हो सकता है। सो आई विल हैव टू गो टू दी मार्केट नाउ, मुझे अभी मार्केट जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए ये मार्केट हटा दीजिए, ये मार्केट हटा दीजिए, आप मार्केट की जगह लगा दीजिए विलेज। आई विल हैव टू गो टू दी विलेज नाउ, मुझे अब गांव जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो टू दी दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो टू दी मुंबई, मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो टू दी जयपुर पिंक सिटी, मुझे जयपुर पिंक सिटी जाना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, जहां जाना पड़े वहां बता दीजिए। आई विल हैव टू गो टू दी प्रिंसिपल ऑफिस, मुझे प्रिंसिपल ऑफिस जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो टू दी इंजीनियर्स ऑफिस, मुझे इंजीनियर ऑफिस में जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो टू दी सेक्रेटरी ऑफिस, मुझे सेक्रेटरी के ऑफिस जाना पड़ेगा। और डालिए आई को वी में बदलिए। वी विल हैव टू गो टू दी मार्केट, वी विल हैव टू गो टू दी अमेरिका, वी विल हैव टू गो टू दी रिसेप्शन, वी विल हैव टू गो टू दी CMO या चीफ मिनिस्टर ऑफिस। ओके, मुझे प्रधानमंत्री से मिलना पड़ेगा। आई विल हैव टू मीट टू द प्रधानमंत्री, टू द प्राइम मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट वी विल हैव टू क्लीन द हाउस बिफोर गेस्ट अराइव। गेस्टों के आने से पहले, गेस्टों के आगंतुकों के आने से पहले, मेहमानों के आने से पहले वी विल हैव टू क्लीन द हाउस। We will have to clean the house, we will have to clean the floor, we will have to clean the almirah, we will have to clean the kitchen, we will have to clean the kitchen before guest arrive, guest के आने से पहले। Getting, सर के आने से पहले मुझे खाना खाना पड़ेगा। I will have to eat food before sir comes। मम्मी पापा के आने से पहले मुझे सब्जी बनानी पड़ेगी। I will have to cook vegetable before parents come। मुझे मम्मी पापा के आने से पहले सब्जी बनानी पड़ेगी। I will have to cook the vegetable sorry I will have to cook food, I will have to cook food before parents come। मुझे माता पिता के आने से पहले खाना बनाना पड़ेगा। Next, you will have to run if you want to become healthy, if you want to become हेल्दी। अगर आप स्वस्थ बनना चाहते हो, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो, इफ यू विल हैव टू रन, आपको दौड़ना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बिकम हेल्दी, इफ यू वांट टू बिकम हेल्दी, इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी, यू विल हैव टू रन, आपको दौड़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू प्ले गेम्स, आपको खेलना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी हैप्पी, आपको खुश रहना पड़ेगा। ओके, अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, आप रहना पे मस्त रहना चाहते हो तो टेंशन फ्री रहो। इफ यू वांट टू बिकम हैप्पी, यू विल हैव टू, इफ यू वांट टू बिकम हैप्पी, यू विल हैव टू बिकम टेंशन फ्री, आपको टेंशन फ्री रहना पड़ेगा अगर खुश रहना चाहते हो तो। नेक्स्ट, वी विल हैव टू बाथ इफ वी बिकम फ्रेश, इफ वी बिकम फ्रेश, वी विल हैव टू बाथ, हमें नहाना पड़ेगा। इफ वी बिकम फ्रेश, अगर हम फ्रेश रहना चाहते तो हम, अगर हमें ताजा रहना है, अगर हमें ताजा रहना है, हमें ताजगी रहनी है, हमें शरीर में आलस हटाना है। इफ वी विल हैव टू बाथ इफ वी बिकम फ्रेश, अगर हमें ताजा फ्रेश रहना है, ताजगी रहनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? नहाना पड़ेगा। ओके, इफ वी बिकम क्या फ्रेश, वी विल हैव टू बात, हमें क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू बात, हमें नहाना पड़ेगा अगर हमें ताजा तरोजगी लानी है शरीर के अंदर। नेक्स्ट, दे विल हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट बस, उन्हें नेक्स्ट बस का इंतजार करना पड़ेगा। दे विल हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट बस, उन्हें नेक्स्ट बस का इंतजार करना पड़ेगा। आई विल हैव टू वेट फॉर सर, मुझे सर का इंतजार करना पड़ेगा। आई विल हैव टू वेट माय डियर फ्रेंड्स, मुझे मेरे दोस्त का इंतजार करना पड़ेगा। आई विल हैव टू वेट माय चिल्ड्रन, मुझे मेरे बच्चों का इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट, शी विल हैव टू स्पीक विद द मैनेजर, उसे मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। तुम्हें सर से बात करनी पड़ेगा। यू विल हैव टू टॉक टू सर, तुम्हें सर से बात करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू टॉक टू मैथ्स टीचर, तुम्हें मैथ्स टीचर से बात करनी पड़ेगी। तुम्हें प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू टॉक टू द प्रिंसिपल, यू विल हैव टू टॉक टू द प्रिंसिपल, यू विल हैव टू talk to the principal, you will have to talk to the vice principal, you will have to talk to the coordinator, you will have to
you will have to talk to HOD, you will have to talk to director, you will have to talk to HODs, okay, whatever, okay, you will have to talk to Sundar sir, आपको सुंदर सर से बात करनी पड़ेगी if you want to learn this, okay. Next, you will have to finish your homework by tomorrow, तुम्हें कल तक तुम्हारा होमवर्क खत्म करना पड़ेगा. I will have to finish my homework by tomorrow, मुझे मेरा काम कल तक खत्म करना पड़ेगा. They will have to finish their homework by tomorrow, उन्हें कल तक अपना काम खत्म करना पड़ेगा. She will have to finish their homework by tomorrow, उन्हें कल तक अपना होमवर्क खत्म करना पड़ेगा. So आज का क्लास हम बिफोर ओवर आई विल अगेन गिव यू इंस्ट्रक्शन. बी हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्पर, एंजॉय द लाइफ, फिट एंड फाइन रहिए. पेरेंट्स का ऑलवेज रेस्पेक्ट कीजिए, ऑलवेज रेस्पेक्ट कीजिए. देयर इज योर लाइफ, देयर इज योर भगवान, देयर इज योर गॉड. आपके माता पिता ही आपके लिए सब कुछ है. दे आर प्रोवाइडिंग यू accommodation, food and money, and they provide you good education and moral ethics also. So always respect them. Don't cheat with them. माता पिता से cheat नहीं करना है. And please give up your bad habits, give up your bad company, okay. Always follow good friends, always follow good habits, be positive and always follow the positive vibes. All the best, have a good day. जय हिंद, जय भारत.